Good afternoon to all of you. Again, we have Asha ma'am with us, and today we will learn about Combust Planet. And ma'am, good evening to you because I think जी जी ऑस्ट्रेलिया में इवनिंग का टाइम भी हो रहा होगा. जी एंड जी तो आज मैम कल हमने बहुत बढ़िया सेशन किया एंड उसमें बहुत बढ़िया अमेजिंग जुपिटर रेट्रो का जो लोगों को पता चला. तो आज हम क्या करने वाले हैं, कौन सा प्लैनेट है, मेरे ख्याल मार्स करेंगे एंड जी सर कंबस्ट प्लैनेट है. एंड ओवर टू यू मैम, कैसे बताना है थैंक यू समझाना है, बता. जी थैंक यू. सर थैंक यू हेलो एवरीवन सो आज का जो टॉपिक है वो है कंबस्ट प्लैनेट्स ऑफ कोर्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग combustion of Mars today. Uh, so with combustion, before we go ahead and try to analyze कि combustion में होता क्या है, sir, if you give me an extra few minutes, I'll just explain कि basically हमारा जो chart होता है वो होता क्या है. So यस मैम, प्लीज प्लीज. यस. हाँ जी. सो अगर हम अपने आप को राजा समझें, लेट्स से, है ना, हमारे पास एक राजमहल है हमारा, या हमारा जो महल है वो है हमारा चार्ट. और वहां का राजा कौन है? सन. वहां की क्वीन कौन है? दैट इज मून. एंड वी हैव अ प्रिंस चार्मिंग, दैट इज मर्करी. एंड व्हाट इज मार्स? सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मार्स. इट्स कॉल्ड कमांडर इन चीफ. सो बेसिकली कमांडर इन चीफ जो है उसका फर्ज ये बनता है कि वो हमारे चार्ट की रक्षा करें. He is the protector of our chart, basically, right? So when a powerful planet, the fiery planet like Mars gets combust, what happens in our life? What do we do? So as an astrologer, when we are trying to analyze a horoscope, what should we do when we see a combustion like किसी planet के आगे हमने C देखा? Should we just freak out, or we should analyze it on a deeper level? Because there's a lot of misinterpretation regarding combustion as well. Because कंबस्शन में क्या होता है कि हम बस सी देखते हैं और सोचते हैं कि बस हमारा प्लैनेट तो कंबस्ट हो गया और अब हमारी ये इस प्लैनेट का ये हो गया वो हो गया. वी स्टार्ट गोइंग इनटू दैट नेगेटिव मोड. बट Mars, of course, every planet gets that C grade due to certain degrees that come into contact with Sun. So for Mars, it's between 15 to 17. To be precise, some say it's 17. So when you look at a planet, and you see it's within this 15 or 17 degrees of sun, let's say Mars, what do? How do we analyze this combustion? We need to understand कि combustion में भी हमें ये देखना पड़ेगा whether the planet is ahead of sun or whether it's behind the sun. So there's two kind of combustion. Basically, you can't just go and freak out just by looking at the sea there. You have to see whether the planet is ahead. So when I mean ahead, let's say sun is sitting at 20 degrees and you have Mars sitting at 15. So जब Mars 15 degrees का होता है और सन 20 का है, दैट मीन्स सन क्रॉस कर चुका है 15 डिग्रीज को, वो उससे आगे है. दैट मीन्स मार्स इज नाउ बिहाइंड द सन. बट इफ वी रिवर्स दिस डिग्रीज, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज Mars is ahead of the sun. So there is a two different situation that this Mars is basically going through. We are not just going to look at this Mars, oh, this Mars is combust and that's it. We have to look what sort of situation it is, how we can take it out of this situation. So as an astrologer, you have to analyze combustion on a very deeper level so that you can guide people in the right direction. So जब वो उसके आगे होगा, yes, there is a combustion happening, but that means now the planet is behaving in a very restless and very, a kind of, he's very nervous. He's trying to rush into things. उसका जो अपनी personality है, उसका जो अपनी चीजें हैं, वो करना चाह रहा है. Mars क्या करना चाह रहा है? Mars wants to fight, show aggression, use his passion in life. So he's ahead of it, but trying to rushing into doing these things in a very, restless manner. But when it's behind the sun, that's when it feels the pressure. That's when it knows that now I have to follow the sun. I can't just rush into things. I have sun right in front of me. So it feels the burden. It feels the pressure. It feels as if it has lots, like there is no room to express its passion out there. So this is just a different angle when you have to look at the degree wise, how it's the combustion is playing in the horoscope. So when Mars gets combust, irrespective of whatever the situation is, what happens is it impacts your ability to fight, your ability to protect. So basically, आपके चार्ट की प्रोटेक्शन वीक हो गई है. If the only exception to this would be when Mars is sitting in its own sign or in exaltation or is aspected by Jupiter, then it's a different scenario.
Otherwise, if Mars is, let's say, sitting debilitated and in combustion, that's where you have to worry about this Mars. That's when this Mars is actually feeling the pressure that it's behind Sun. It's struggling there. So what it does is it reduces your ability to fight back, to face challenges in life. It reduces, it impacts your ability to take those courageous, bold decisions in life. आप अपने पैशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लाइफ में. Why? Because you're somewhere feeling you are the leader has to follow another leader now. So it feels that pressure. It's like commander in chief now is sitting in a meeting with the prime minister. So it's just behaving in a very decent manner, not to show aggression or anything. So something or the other is always troubling this individual when Mars gets combust in someone's chart. And what happens is even a smaller thing, because when your ability to fight back reduces, आप एक छोटी सी चीज को भी देखेंगे कि वो बड़ी बन गई है लाइफ में. It has the ability to damage on a bigger level, even if it's a smaller problem. So Mars combustion can also lead to a lot of, hypertension. It can lead to issues, health issues like आपको BP हो जाना. But fire dangers can also be there. We can also see, sudden accidents. We can also see sudden outburst of anger there, because the Mars is feeling very frustrated there. And these are two fiery planets sitting together. So the energy of that house becomes, there's a lot of fire there. So it can also show there's some sort of cut or, accident from a very sharp tool or something. So issues related to land can also be seen. इन लोगों को land related issues भी काफी होते हैं, या उससे related disputes में ये लोग फंस जाते हैं. So कोई भी एक छोटी सी चीज भी जिंदगी में बड़ी problem बन जाती है, because your ability to fight has been reduced, has been suppressed. You're not able to express your courage. You're not able to show your passion. So that is where you struggle in life. So when Mars gets combust, आपके साथ में क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंटली एक अननेसेसरी फियर भी माइंड में रहता है. आपको हमेशा एक अजीब सी so sorry, I just got distracted with that. Yeah. So what happens is Mars यहाँ पे ना एक कांस्टेंट उसमें भी रहता है, जहाँ पे कि एक अजीब सा अननेसेसरी फियर रहता है मार्स को कि should I do this, should I do that or not, because now the leader is right in front of him and Mars is supposed to follow. But if it's in the degree wise, it's ahead of the sun, that means it's trying to do all the things that it wants to do, but it's doing it on a very fast manner. So उस केस में भी क्या होगा, there will be mistakes in that area. The native can make mistakes related to, decisions related to purchase of land. Siblings of younger sibling of this native brother can struggle in life due to this combustion of Mars. But one very neglected thing that I've noticed in the analyzing combustion, that's like, we have a very biased approach towards analyzing a horoscope when we see a combust planet. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये planet combust है. We become very biased about the planet. हमें लगता है कि बस इसी को बचाना है. We forget that the sun is also involved in this combustion. This combustion is happening because of sun. So you cannot ignore, especially when Mars or Saturn is in combustion. You need to understand sun is also in trouble. Sun is also struggling. So you can't look at a combustion just by looking at that planet, that this is combust. You have to look at how sun is feeling, because if all these things are happening, a sun has to, for example, a leader has to deal with someone or handle someone who's very aggressive, very passionate, and could be very bold. Now the sun has to use a lot of power. Sun is also facing some sort of struggle there. So we can see in these cases, ऐसे लोगों के जो father होते हैं, sometimes they face a lot of accidents in life. They may also go through some sort of fire dangers or some cuts or burns, some sort of sudden, events or sudden event of, outburst of anger or something they get involved into. Land disputes they can get involved into. So looking at a combustion, just like, can't be a blind approach. It has to be a very, precise, and it has to be very detailed approach whenever you're trying to analyze this combustion. So if anybody has Mars in हाँ, their तो मार्स मार्स का करते हैं. मार्स कंबस्ट जिस दिन का है, कैन यू रेज योर हैंड्स? मार्स कंबस्ट आप समझते हैं? जब आप कुंडली देखेंगे तो उसके अंदर आपको
MA के बगल में ऐसे C दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी क्लोज टू सन ऑल्सो, एंड डिग्रीज विल बी विद इन 15-17 डिग्रीज। तो किसका कैसे है, कैसे लगेगा, कहाँ पे है, तो अभी ट्राई करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट द पर्सन टू whichever name I take, please unmute yourself, put your video on, and then come on this thing. सबसे पहले GC, can you please come on? GC जी। हाय। गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। हाँ जी। मार्स कंबस्ट है 2 डिग्री पे, एंड सन है 19 डिग्री पे, 10th हाउस। हाँ तो क्या मैम इनका क्या बताएंगे? कौन से हाउस में बताया, कैन यू प्लीज रिपीट? 10th हाउस इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। 10th house, सैजिटेरियस। Sagittarius in the 10th house. So, of course, there is some sort of struggle or there's some sort of challenges that you face at workplace. राइट। Does it match? यस इट डज। Yeah. Okay. Thank you. ओके, ओमकार जोशी जी बताएं। हेलो। ओमकार, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बताएं, हाँ, कहाँ पे मेरा है आपका? फिफ्थ हाउस में है। एंड मार्स इज अहेड ऑफ द सन बाय फिफ्थ। 7 डिग्रीज आई गेस। ओके, मार्स फिफ्थ हाउस में है मैम। जी, मार्स फिफ्थ हाउस में क्या करेगा? मार्स फिफ्थ हाउस में आपको पैशनेट लव अफेयर्स दे सकता है ना? आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू कंफर्म दिस, ऑफ कोर्स यू कैन say no if you want to, it's up to you, but it can give you some very restless or very जिसे कहते हैं ना कि you just rush into relationship because Mars ahead, right, you said, and that can also lead यस। to some sort of disputes and fights, or the relationship may have breakup due to unnecessary, or some sort of rational decisions that you have taken. या एंड एक्चुअली आई हैव द अराउंड 6 planets in fifth हाउस। Yeah, कौन से yeah. साल की पैदाइश हो भाई, कब की हो ये इतने? हैं? 1993। छह मिल 7th गए थे। दिसंबर 19। कौन सी राशि में है? कन्या, वर्गो। वर्गो में सारे छह साल, नो वेरी नाइस। सॉरी, 6th, कैप्रिकॉर्न में होंगे, या दिसंबर में नाइन्थ हुआ था। नाइन्थ राशि। नाइन्थ राशि। नाइन्थ राशि है, 10th? नाइन्थ है, नाइन्थ। फोर्थ। आपका लगन कौन सा है? फोर्थ। ओके, 4 है, ठीक फोर्थ है। लगन। ओके। ओके, नेक्स्ट है कांस जैन, बताएं। लगन 4 है तो फिफ्थ में 9 कैसे आएगा? हेलो सर। तो वृश्चिक, वृश्चिक मेरी आएगा, वृश्चिक आएगा। जी। हाँ बेटी हाँ। है, उसका है मार्स कंबस लगन में है और स्कॉर्पियो राशि, और सन और मार्स दोनों 3 डिग्री पे हैं। जी। कौन से हाउस में? लगन में है, फर्स्ट। फर्स्ट हाउस में, स्कॉर्पियो ओके। राशि में। जी। हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, सर? अभी तो 2 साल से थोड़ी कम है। आप उसको छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। तो या उनका इतना छोटे में क्या ही करेंगे। दीपक जैन जी बताएं। सर मेरा लग्न में है, मार्स इज 2 डिग्री अहेड ऑफ सन एंड लग्न इज जेमिनी। okay. ओके। And so whatever points I was mentioning, would you were able to relate to those? या अ बिट। जी। So there is a non-stop, tug of war that's happening within your mind. कि मैं ये राइट करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं, kind of a situation. You want to do things, but then you pull yourself back. You feel there is a restriction in your life, राइट राइट राइट। right? एंड जेमिनी इज अ डुअल साइन, सो मे बी दैट्स व्हाई इट इज That मोर। that even adds, cherry on top for you. राइट राइट। जी। ओके, मौसमी चौधरी जी बताएं मैडम किसका है? मौसमी जी हाँ बताएं। हाँ मैम, मेरी एक घर का ही रिलेटिव का है। वो लड़की है और उसका 11th राशि में है, और 20 डिग्री का, दोनों ही 20 डिग्री में है, सेम डिग्री वहाँ सन सन। जी। तो आप बताइए, जो हम बता रहे हैं वो सब मैच हो रहे हैं कि नहीं, मौसमी जी? हाँ, वो उसका तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। और 11th राशि में जो आय का भाव बोलते हैं ना, उसका बहुत नौकरी छूटती है जी। एक के एक बार। गेम्स में प्रॉब्लम आ गया। इनकम में भी फ्लैक्चुएशन, इनकम में भी है। जी। इश्यूज रिलेटेड टू गेम्स हो गए उनके लाइफ में। जी। जी। ओमकार गुप्ता जी बताएं। नमस्ते सर।
हाँ जी बताएं। नमस्ते मैडम। सर मेरा नमस्ते जी। एक्चुअली में फ्रेंड है मैडम, उनका है, फीमेल है वो फ्रेंड, उसका जेमिनाई लगन आ जाता है सर। और 6th हाउस में जो स्कॉर्पियो आ रहा है सर, वहां पे है मार्स एंड सन है सर। और मार्स का जो डिग्री है अराउंड 4 डिग्री पे है, सन 10 डिग्री पे है, तो बिहाइंड में है, हो जी जाता है ना सर। जी जी। जी एंड मैडम जी। इसमें कैसा है, जो आपने लेग रिलेटेड वाली इश्यूज बताए, तो उसका नीज वगैरह भी कुछ डिसलोकेट हो गया था एक टाइम पे, देयर आफ्टर और भी डर वर भी हमेशा उसको रहता ही है। जी जी तो जी। रूट तो मैच कर रहा है मैडम ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर मैचिंग। जी। थैंक यू। ओके, शीतल जी बताएं। शीतल जी बताएं। जी सर। 12th हाउस में मार्स डिबिलेटेड भी है और कंबस्ट भी है 28 पे, और सन भी वहीं पे 23 पे है। तो ये चीजें, वो जो फादर एक्सीडेंट है वो भी मैच हुई थी, और करेज वगैरह की जो कमी है वो भी है। मेल का चार्ट है ये, जी। हम्म, और स्ट्रगल वगैरह सब है। पर ये 12th हाउस में है विथ कैंसर, तो ये भी आई थिंक ये सब फॉरेन में सब चीज सही थी। इन होम टाउन सारी इश्यूज बहुत है जो आपने बताया, मैच करा है। जी। थैंक यू। सुशांत जी ओके, बताइए। सुशांत जी बताएं। या जी, मेरा जो मार्स है वो फिफ्थ 4th हाउस में है, फिफ्थ राशि के साथ। और साथ में सन भी है, मरकुरी भी है, वीनस भी है। और मरकुरी और वीनस भी कंबस्ट है। जी आप हेलो। बताइए। हम जो ये सब बता रहे हैं वो सब मैच हो रहा है कहीं? मरकरी वीनस ऑफ हाँ, कोर्स विल बी मैच हो पा रहा हो। डिस्कसिंग इन द सेशन कंप्लीटली, बट आज सिर्फ हम मार्स की यस बात मैम। कर। मैच हो रहा है सब। यस। यस जी। मैम मैम। तो गजब गजब हो रहा है, तो आई थिंक विल अभी काफी लोगों का कर लिया। मैम ये पूछना है कि जैसे मैच हो गया, इसका कुछ छोटा मोटा कोई इलाज है? उस कंबस्ट कुंबस्ट को दोबारा कुछ माचिस वाचिस थोड़ी गर्मी कुछ कुछ और हो सकता है कंबस्ट हो जाए तो इलाज इन द कुछ। सेंस कंबस प्लैनेट का बेसिकली होता ये है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्पेशल नक्षत्र या किसी में मैं सबको यही कहती हूँ कि आप सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। ज्योतिष के लिए कम टाइम निकालना हो कम निकालिए, पर मेक दिस एज योर रूटीन फॉर योर लाइफ। बट ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट मोर थिंग्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द सेशन, जिसमें कि आपको बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट इम्पैक्ट्स यू ऑन योर डेली लाइफ। तो आप साल में कुछ एक चीज करके नहीं कर पाएंगे। समवेयर यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस विद दीज काइंड ऑफ प्लानर्स इन योर लाइफ। ठीक है मैम। जी। बहुत अभी इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मैम इसमें अपना, और बिकॉज ये तो बहुत लोगों का हो गया अभी ऑलरेडी हाँ अपना। जी, सबका ए, मैच हो गया है, बट उसके हाँ। अलावा भी जैसा कि मैंने बताया कि यूजुअली कंबस्ट का जो हम देखते हैं ना, कि हम बस कंबस्ट देखा और बस हम फ्रीक आउट कर गए। नोबडी पेज अटेंशन टू द पुअर सन। बेचारा सन भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। एनी टाइम यू सी अ कंबशन हैपनिंग विद you also have to see कि what sun is going through. So अगर मान लीजिए कि वीनस आ जाता है सन के साथ में कंबस्ट में, वी ऑल जंप इनटू कि वीनस गया, रिलेशनशिप फाइनेंसेस ये सब स्ट्रगल में आ गए। ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज भी देता है जब वीनस और उसका होता है सन का कंबशन। बट हम ये भूल जाते हैं कि जब सन की आग को वीनस जल तत्व प्लैनेट आता है, there has to be something that is troubling the sun as well. So we can't just treat the combust planet, we have to treat both the planets basically. So the approach has to be right before we jump into conclusion, before we try to advise people या consultations करना, make sure you're going like with a microscope kind of a view of a horoscope, जिसमें कि आप चीजों को इतने डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि सामने वाला कह रहा है कि आज तक मुझे ऐसे तो मैंने कंबस्शन को देखा ही नहीं था। समझ गया मैम। तो जी। आज मैम आज ही शाम को 7 o'clock जी। हमारी वर्कशॉप है, आप कंडक्ट करेंगे। एंड उसके अंदर ये रेट्रो प्लैनेट्स एंड कंबस्ट प्लैनेट्स इज द टॉपिक। बहुत जी बढ़िया। सर। जी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल आई टेल लेटर। आप ये बताएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा और क्या क्या रहेगा मैम, जस्ट शॉर्ट में सो उसमें लोगों के। बेसिकली आई बी कवरिंग द होल कंसेप्ट ऑफ रेट्रो। बेसिकली रेट्रो का जो है ना, कुछ सीक्रेट्स जो ऑफ कोर्स दैट आई एम नॉट शेयरिंग या आई विल बी शेयरिंग इन द सेशन। सो देयर इज आई विल बी गोइंग इनटू द वेरी डीपर लेवल ऑफ कि व्हाट एग्जैक्टली रेट्रोग्रेड इज, रेट्रोग्रेड से एग्जैक्टली होता क्या है। ट्रांजिट में जो हर साल प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। दशा में अगर आपका प्लैनेट मान लीजिए रेट्रो है चार्ट में, तो दशा उसकी कैसी जाएगी,
ऑल एक दोस एक मिनट हम इस वाले को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। जैसे जी कि मार्स रेट्रो नहीं है जी किसी का चार्ट में, लेकिन ट्रांजिट में मार्स रेट्रो हो गया, जी और तो वो भी तो इफेक्ट करेगा, यानी सभी के लिए तो बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं रेट्रो प्लैनेट लेके बैठा हूं बर्थ नेटल चार्ट में, तो फर्क है जी ही है। लेकिन जी पूरे साल प्लैनेट्स हो रहे हैं, कंबस्ट भी हो रहे हैं, और जी वो भी हो रहे हैं, कौन से हाउस में हो रहे हैं, तो यानी दिस इज फॉर एवरीबॉडी, है ना? जी। क्योंकि तो अगर यही वो मैं उसमें लॉजिक तो हम डिफरेंस, ट्रांजिट में लगाते हैं। जी ये हाँ। वाला डिफरेंस उसमें बताने वाली हूँ मैं सेशन में, कि हाउ टू एनालाइज, कि अगर आपके चार्ट में रेट्रो प्लैनेट है तो वो ट्रांजिट में क्या रिजल्ट देगा, दशा में क्या देगा। अगर आपके चार्ट में रेट्रो नहीं है तो ट्रांजिट और उसमें आपको क्या देखना है। सो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन अ डीपर लेवल एज ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस मैम। वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मैम। मैं थैंक तो यू रिक्वेस्ट करूंगा थैंक आपको, अब आप सो यू। जाएं, बिकॉज जब सेशन होगा तो फिर जी काफी रात हो जाएगी आपके लिए। तो आप, अब हम लोग तो इंडिया में भी जाग रहे हैं, आप मेरे ख्याल ऑल गुड सो सर। जाएं, बिकॉज 7 o'clock वर्कशॉप रहेगी। एंड हाँ सबको जी। आज ही है, तो मैं सबको प्रोसेस बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। All those who are listening to me on recording can WhatsApp RP to me, which is short for retro planets, ठीक है? तो आप मुझे RP WhatsApp कर सकते हैं, और जो अभी लाइव सुन रहे हैं उनको, जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, देयर विल बी डिस्काउंट फॉर ऑल ऑफ यू सब्सक्राइबर्स, एंड जो भी सुन रहे हैं, एंड